on cybercrime, trend, nuances, and framework, and will articulate viable discussions and meticulous explanation on its development regime, critical framework, and digital prowess. So, subsequently, cybercrime is an illegal activity advancing with technology to evade existing defenses. Cybercrime encompasses a wide range of criminal activities that are carried out on digital devices and on network, which involves the use of technology to commit fraud, identify theft, data breaches, computer viruses, scams, and expand upon in the malicious act. So the cyber attacks are becoming more prevalent due to easily accessible computers, cloud storage, cloud data and storage, human negligence and vulnerability, and therefore utilize computers and related technology in the commission of crime. So on this note, the lecture will dispense on around cybercrime, its nuances and critical framework. So our Justice Scriptum is a legal community that fosters a multifaceted approach towards stimulating legal education and service to a diverse audience. Our aim is to provide and deliver high quality of legal services in the form of webinar, lecture sessions, motivational discourses, organizing quiz and other competitions like article writing, essay writing, etc. We strive to build an interdisciplinary forum to navigate law-related services, legal deliberations, research publications, and different credit courses. Our pursuit is to enhance legal fraternity with the contemporary emergence of law and evolving facets of legality to a massive height to ensure universal standards and professionalism. So, to maintain our continued legacy, today we have invited Advocate Gupta sir as a keynote speaker for the session. Sir, with him a wealth of knowledge and expertise, having worked in the cybercrime. Sir is a practicing advocate in the High Court and District Court and a founding partner of Chamber of ANG. And his qualifications are BCom and LLB and diplomas in cybercrime and digital marketing. Today, Sir will be sharing insights on cybercrime, guiding us through trends, nuances, and framework. So, without any delay, now we are going to begin today's session. Over to you, sir. Thank you, Harish, for giving me such a wonderful opportunity in this. Hello, everyone. Today, the topic is cybercrime. So, what is cybercrime? If I'm talking about layman language, किसी के दिमाग में भी आएगा साइबर क्राइम क्या होता है? तो साइबर क्राइम इज लाइक कि जो क्राइम होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इट इज कम अंडर साइबर क्राइम. Sorry, let me share the slide as well. Just wait for a while. Can you see the slide? Hello? Yes, the slide is not visible yet. Okay. Just give me a moment. Just give me a moment. Yes, sir, sure. Okay. कैसे होगा बताओ.
Hello. Yes, sir. You can Sorry share. for the delay. Is Sir, it visible? not sir. Sir, you can share the PPT with me. I will share. Okay, it is not. I will share the PPT as well. Just wait for a while. Yes, sir. You can take your time. Okay. I will email you, or otherwise I will WhatsApp you. Sir, you can WhatsApp me or email. WhatsApp me. That will be feasible. Okay, okay. I'm not that much techie person. It, It's okay. Fine. you received the message for the PPT. Yes, sir. I have received. Okay, We'll be sharing just 2 to 3 minutes. You can start okay, by the then. okay. Sorry for the inconvenience. So basically, I'm talking about what is cybercrime. What is cyber? The cybercrime is a crime offense related to an online platform. Like if I'm breaking the what is cyber and what is crime, the cyber is the for example computer, laptop, internet, VR surfing. That is called under cyber. And crime is like a online. The crime is like the offense related to society. That is the whole process of cybercrime. If I'm talking about the layman language, cybercrime refer to the illegal activities conducted through the internet or evolving the computer technology as under the reliance on digital platform grow. If I'm talking about the next part is the characteristic of cybercrime. What are the characteristics that help in a cybercrime? For example, geographical challenges. What are the geographical challenges? The geographical challenge are challenges suppose कि if you are sitting in India and आपको कुछ भी लेना है यूएसए के अंदर तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड फ्री एक्सेस है हमारे पास वर्ल्ड वाइड फ्री एक्सेस है हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं एंड व्हाट अबाउट चैलेंजेस वी आर फेसिंग सपोज कि इफ देयर इज अ हैकर तो यूएसए में बैठ के इंडिया का कुछ सिस्टम हैक कर देते हैं तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई these are the challenges facing by the cyber cybercrime and what second characteristic is cyber pornography the illegal content used in a online platform is cyber pornography like if there is pornography is banned in the cybernet in India as well but there are some other website they are using it suppose if someone's seen these type of things and unnecessarily they allow some certain things and they clone all the details and they will misuse they will they will going to misuse वो आप उस बंदे के लिए वो बंदा उसके लिए मिसयूज कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि आपने जब अलाउ किया तो सारा जो डेटा है सब क्लोन हो गया है and next the thirdly the character is data theft
What is data theft? The data theft is like when you steal the data from uh, when you steal the data from another computer. That is known as data theft. Kindly show page number 2. Yes, data theft. Suppose कि आप you are having the computer. आपने किसी और के कंप्यूटर से डेटा जब आपने स्टील करा विदाउट नोइंग हिम और हर, दैट इज नोन एज डेटा थेफ्ट एज अ लेमन लैंग्वेज. सपोज यू आर अ स्टूडेंट, आपको कंप्यूटर आपने कॉलेज के कंप्यूटर में एक्सेस करके इलीगल एक्सेस करा एंड बेसिकली आपने डेटा निकाल लिया फॉर योर बेनिफिट. दैट इज कम अंडर डेटा थेफ्ट. These are the example I'm putting जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए. Nextly, we are talking about data diddling. What is data diddling? Data diddling is the data. Data diddling is the data like कि आप इसे जो raw data को tamper करना. Supposingly कि if there is a Mr. ABC, उसकी attendance short है कॉलेज के अंदर एंड उसको पेपर में बैठना क्या करेगा, तो उन्होंने कॉलेज के सर्वर में जाके अटेंडेंस शीट में से डेटा निकाला, मॉडिफाई करके अपलोड कर दिया, ऑल्टर करा रॉ डेटा को टू देयर ओन बेनिफिट. दैट इज कम अंडर डेटा डिडलिंग. एंड नेक्स्टली वायरस बॉम्बिंग. सपोजिंगली जैसे ये क्या होता है, व्हाट इज वायरस बॉम्बिंग? वायरस बॉम्बिंग इज देयर इज अ बग आप किसी कंप्यूटर में प्लेस करते हैं, उससे क्या होता है कि उसका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है. दैट इज अ बग राइट पुटिंग इन अनदर कंप्यूटर. लाइक कि जैसे रॉ ISI वाले करते हैं कि इंडिया जैसे पाकिस्तान में कोई एजेंसी है, आपको आई नो कि इंडिया पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज एंड उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है. तो बेसिकली क्या होता है कि वो लोग इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के अंदर डेटा बग कर देते हैं जिससे कि उनका सिस्टम स्लो हो जाता है एंड वो जो डेटा वगैरह देख सकते हैं. एंड लास्टली स्पैमिंग. व्हेन यू स्पैम अ डेटा कि अननेसेसरी कॉल मैसेज भेजना, अननेसेसरी ईमेल करना कि लाइक कि देयर इज अ गुड ऑफर, यू जस्ट जॉइन हिम फॉर online job portal, cryptocurrency and all that, these are come under cyber spamming. Can you please next slide कर देंगे please? Slide number 3. Yeah, thank you. Then normally what are the classification of cyber crime? अगर if I'm talking about a layman language, तो classification क्या है? तो there are mostly 3 classifications in cyber crime, like कि जो target और जो एक तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर टारगेट बाय द क्राइम. तो एक तो कंप्यूटर ही टारगेट है. दूसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइम कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइम यूजिंग इन अ साइबर क्राइम. एंड थर्डली इंसिडेंटल ऑफ क्राइम. तो बेसिकली क्या है कि जो कंप्यूटर क्राइम तो देखो हो रहा है साइबर के अंदर, तो देयर आर 2-3 मीडियम कि एक तो आप कंप्यूटर के बेसिस पे क्राइम कर सकते हो, कंप्यूटर इज द ओनली मीडियम. सेकेंडली मोबाइल फोन, आईपैड, दोज आर द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वी कैन यूज इट, दैट्स आर द कम अंडर साइबर. तब कंप्यूटर एज अ टारगेट ऑफ अ क्राइम. अब कंप्यूटर का टारगेट कैसे बनाया जाए? इसमें थेफ्ट ऑफ डेटा, या आपने डेटा वहाँ से अपने बेनिफिट के लिए जो आपने चुराया, तो आप यू बिकम अ टारगेट, तो दैट इज कम अंडर साइबर क्राइम. फिर थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कि जैसे होता है नहीं कि पायरेसी, जैसे बहुत सपोज कि कोई अडोबे इज वेरी
एक्सपेंसिव वर्जन आपको यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, उसका पायरेटेड वर्जन यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज आप उसके अंदर उसकी वेबसाइट में से हैक करके कुछ ना कुछ निकालेंगे टू मेक इट मोर चीपर। है तो ये क्राइम ही। एंड थर्डली इज अनलॉफुल एक्सेस टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर अनलॉफुल एक्सेस कर दिया टू स्टील डेटा एंड एवरीथिंग। Fourthly is theft of marketable information. The what is marketable information? Suppose कि क्रिप्टो करेंसी हो गई है, स्टॉक क्रिप्टो करेंसी हो गई, जो इंफॉर्मेशन लाइक मार्केट में अवेलेबल है, these are called as market information. एंड अगर मार्केट में इंफॉर्मेशन है तो हाउ विल बी थेफ्ट, हम चोरी क्यों करेंगे? बिकॉज कि आप अपनी चीज़ों को इजी बनाने के लिए आप चोरी करते हैं, थेफ्ट करते हैं, टू मेक थिंग्स मोर ईजियर रिलायबल। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज एक चीज़ है, सपोज देयर इज एप्पल हु कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज़ एक वेबसाइट पे, एंड दूसरी वेबसाइट पे, एंड नॉर्मली फर्स्ट वेबसाइट पे दे आर, आई नो कि वो रेलेवेंसी है, सब चीज़ है, एंड नेक्स्ट सेकेंड वेबसाइट पे इट विल कॉस्ट यू 50-60 रुपीज़, एंड हाउ विल यू बिलीव कि वो रेलेवेंसी है कि नहीं है? वो आपको पैसे लेने के बाद रिवर्ट करेंगे, देंगे नहीं देंगे? इट इज़ ऑल अबाउट थेफ्ट ऑफ marketable information. And lastly is blackmailing. You all know what is blackmailing. And nextly, we are talking about computer as an instrument of crime. What are the instrument of crime? The fraudulent use of ATM and accounts. So how will you हम fraudulent use कैसे होगा, क्या होगा? सपोज कि UPI पिन दे दिए, पिन देने के बाद आपके आए नो, आपके अकाउंट में पैसे हैं, वो मिसयूज करा चीज़ों को लेके, क्योंकि जब आप व्हेन यू आर यूजिंग ATM कार्ड्स एंड ऑल दैट, तो उसमें जो चिप होते हैं वो उसमें डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, एंड जो लोग ले रहे हैं उन्होंने इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहा है, उनके पास तो ऑलरेडी डाटा जा रहा है। That is come under instrument of cybercrime. Secondly, credit card frauds. There is a Q&A round after fifth slide. If you want to ask, you can on that. Yeah. After this slide, after 2 slides, I will rectify your doubt. Okay, sir. Okay. That is come under credit card frauds. Then nextly, there are frauds related to e-commerce. Then क्या होता है कि आजकल e-commerce बहुत ज़्यादा बूम पे जा रहा है। You all know कि what is e-commerce? So e-commerce is like कि we are just buying things online mode. We are not going offline as well. And e-commerce के अंदर फ्रॉड इस टाइप से हो रहा है कि बेसिकली कि साइट के ई-कॉमर्स फ्रॉड ऐसे हो रहा है कि आपने कोई भी चीज़ मंगाई, आपने कुछ भी जब मंगवाया तो आपने देखा कुछ और आया कुछ है, उसके बाद रिटर्न ले नहीं रहे। यू ऑल नो देयर इज़ जब राम जी का जब जन्म हुआ था, जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, देयर इज़ खादी इंडिया के लिए जब प्रसाद वगैरह जब भेज रहे हैं, तो इन 51 रुपीज़ के अंदर, इफ़ यू ऑल नो, तो उसके अंदर क्या हुआ, एवरीवन यूज्ड टू पे 51 रुपीज़ एज वेल, एंड उसके बाद वो चीज़ आया नहीं, क्योंकि
द साइट इज फ्रॉड। उन्हें कॉपी करके सेम खादी इंडिया जैसे साइट बना लेती है, एंड कुछ वी डोंट गेट एनीथिंग। एंड आई नो मेरे भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी ये सब चीज़ें हुई है। एंड नेक्स्टली दे आर telecommunication frauds. Telecommunication frauds are the frauds that come under all telephonically. For example, they call you for the आपके घर बैठे बैठे जॉब लगवा देंगे, आप आइए करिए, एंड वर्क फ्रॉम होम के अंदर यू डोंट गेट एनीथिंग। एंड रिलेटेड टू दिस कि देयर इज अ वन accused having these sort of things, लाइक कि उन्होंने बेसिकली पैसा लगाया कि घर बैठे बैठे काम हो जाएगा, फिर उन्होंने बोला ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने टेलीग्राम पे शिफ्ट कर दिया, टेलीग्राम पे जो लिंक्स वगैरह देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके दे स्पेंड 50 लाख फॉर दिस, एंड इन रिटर्न दे गेट नथिंग। These are the frauds we are doing day-to-day activity, facing day-to-day activities. The fraud involving electronic fund transfer. What is electronic fund transfer? अर्पित तोमर जी बताएंगे what is electronic fund transfer? Yeah, electronic fund transfer Yes, can sir. be classified as that we are doing UPI and other things like Paytm and using that kind of stuff, social media things, for which we are transferring the money from one place to another. Right, Yes, sir. right. But fraud कैसे होगा? फ्रॉड सर, अगर कोई आपका पिन ले ले या फिर किसी तरीके से बीच में कोई फिशिंग या और तरीके से बीच में आए तो उसको फ्रॉड कह सकते हैं। You are absolutely right, but I need to clarify कि there is like कि आपने suppose किसी को पैसा दिया unknowingly, आपने उसे what is I will tell you, suppose कि हमने UPI करा कि there is XYZ number, हमने लास्ट की डिजिट चेंज होकर हमने किसी और को दे दिया, ये तो पहले ये चीज़ होती है। दूसरी बात ये होता है कि बेसिकली हमारे पास गलती से 1-2 करोड़ रुपए आ गया अकाउंट में, हम क्या करेंगे, हमारा तो है नहीं। तो सेकेंडली ये होता है। तीसरा ये होता है कि इसका सपोज कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने साइबर में कंप्लेंट करी, साइबर में कंप्लेंट करने के बाद वो जो अमाउंट है जिस भी अकाउंट में जाएगा वो सब फ्रीज कर देंगे। These are come under cyber electronic fund transfer. बट द सेम थिंग सर, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि ये आप लोग ट्रांसफर करते वक्त एक यूनिक आइडेंटिटी कोड बनाते हैं which is not related to your debit card or credit card. I will rectify your query after this slide as well. After 2 slides as well, there is a Q&A round. Take it. Okay, sir. Okay. Then frauds involving the stock transfer. When the fraud in जब स्टॉक ट्रांसफर के अंदर सपोज कि हमने कोई स्टॉक लिया, उसका रेट कम ज़्यादा हो गए, तो क्या करेंगे इस केस में? तो इन दिस देयर इज Dear participants, your queries will be taken at the end of the lecture, or whenever sir feels, then we will take all your queries. fraud involving that stock transfer. Stock transfer is like when you're buying the sale, while the sale or purchase of the stocks, and we are facing the fraud in that. That's the main thing. The next part is the computer is indicate to crime. There are two types of things: the internet crime and the web-based crime. The internet crime is involving the hacking, malicious of launching of malicious program and spamming. And secondly, web-based crime is a website-related crime. You use net-related crime and crime through emails.
If you want me to elaborate the sub point as well, I will. If you want to, otherwise I will go upward because the time is really very less. Next point is key types of computer crime. What are the types of computer crime? If I'm facing, if everyone is facing the same. The type of computer crime is like cyber defamation. When you defame someone on a internet, data come under cyber defamation. The cyber defamation, the section is 499 of IPC define what is cyber defamation. Like when you defame someone online on a social media platform involving the cyber. And nextly, the defamation through email. When you defame someone through email, that is known as email defamation. Like there is a big organization, I will email a bad email, defame, and put it on online. That is the whole process going on. And lastly, harassment and cyber stalking. What is harassment and cyber stalking? When you stalk someone without his or her permission, that is known as online mode, that is known as cyber stalking. Can you please next slide कर देंगे please? The slide is all about the cyber terrorism. Could anyone answer what is cyber terrorism in a layman language? बेसिकली सर जो फंड्स ट्रांसफर करते हैं ऐसी कंट्रीज में जहां पर कि उनको जरूरत पड़ती है, जैसे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीद लेते हैं, उनको साइबर टेररिस्ट कहते हैं. You are partly correct and partly not. Could anyone कोई बताएगा please? The cyber terrorism like कि when that suppose कि दो कंट्रीज है, साइबर के स्पेस में घुस के आपको स्टील करना डेटा, ऑनलाइन स्टील करके डेटा आपको परेशान करना, लाइक दीज आर द comes under cyber terrorism. Like fundraising, these are partly correct. That's why I said the training karna, investigation karna. This is the all other part of cyber terrorism. Suppose I know India, Pakistan that I'm using it there क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं. क्योंकि मोस्टली आपका बेसिकली माई क्लाइंट रिसीव अ कॉल लाइक कि +92 से व्हाट्सएप पे कॉल आया, बोलते हैं कि आपकी जो आपका जो बच्चा है मेरे पास है, विल यू ट्रांसफर दिस फंड टू रिलीज योर सन एंड ऑल दैट. दैट इज द कॉल द साइबर टेररिज्म. क्योंकि जो नंबर है वो है पाकिस्तान का. पाकिस्तान के दे आर क्रिएटिंग फंड, दे आर threatening us for the large number. And basically धीरे धीरे एंड अब क्या है कि जो नेबरिंग कंट्रीज सपोज जिसके एलियन एनिमीज आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसकी और वो हमारे जो इंडिया को अब दूसरी कंट्रीज को डिफेम करने के लिए दे आर यूजिंग इट. क्योंकि अब हर चीज़ एक्सेस ऑनलाइन है. व्हाट वी आर पोस्टिंग इट एआई में जा रहा है, वो चीज़ें डिफेम हो रही है. वो चीज़ें आप जो ऑनलाइन पब्लिक के लिए पोस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ हो रही है, बेकार चीज़ के लिए यूज़ हो रही है. And next, and cyber terrorism is suppose कि if there is a hacker, उन्होंने यूएस में बैठ के इंडिया का सर्वर हैक कर लिया, इंडिया में सब चीज़ हो गए. एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई? क्योंकि जब जो हैकर है
या कोई भी चीज़ हैक करेगा तो उसका जो आईपी एड्रेस आता है, क्योंकि हम जो ट्रेस करते हैं हम आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रेस करते हैं एज यू ऑल नो, बट उसने तो अपना आईपी एड्रेस पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया कि जो आईपी बाउंसिंग भी होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हैकर्स है आईपी एड्रेस को बाउंस कराते हैं, किसी और के घर पे रिलोकेट कर देते हैं। दैट इज कम अंडर साइबर टेररिज्म। अब कैन यू प्लीज स्विच द नेक्स्ट स्लाइड? थैंक यू। तो साइबर टेररिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट लॉ में देखा जाए कि हम बेसिकली लॉ से कैसे प्रोटेक्ट करें। तो अगर सपोज साइबर टेररिज्म किसी ने पकड़ लिया समथिंग लाइक दैट, कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे टुवर्ड्स लॉ। देयर आर टॉकिंग अबाउट देयर आर four point then we can protect ourselves. Suppose section 66 of IT Act 2000 that comes under cyber terrorism. Secondly, IPC, क्योंकि जो साइबर क्राइम हो रहा है साइबर के साथ साथ नॉर्मल क्रिमिनल लॉ भी इस पर चलेगा। आईपीसी के अंदर सेक्शन 121, 141 सेडिशन, 383 extortion, 385 putting someone in a fear of injury in order to commit extortion. And lastly, section 386, extortion by putting the person in fear of death or grievous hurt. Thirdly, unlawful activity prevention by Prevention Act 1967. And lastly, the National Cyber Security Policy 2013. These are the laws protected by us in a cyber, if the person is facing cyber crime and all that. There is a next slide is a Q&A round. If you want to ask, you can. Guys, if you have any questions or queries, Yeah. please feel free Yes, to sir. ask. I've got Sir, one query. Yes. One query. Participant one by one. We will go with Yeah. Ghansham sir first. Yeah. I am receiving a spam email that from CBI, IB, police headquarters that you are involved in the pornography observation. So you have to report to the police commissioner within 48 hours. This message is coming for last 2-3 months. Okay. I am deleting this message every time. Why What are you type of- deleting it? In spam folder. Right, It is right. coming in spam folder. Okay. So is it a crime, cyber crime? Yes, this is a part of a cyber crime. Cyber crime is like कि वो आपको डिफेम तो करे through emails, right? Yeah. And आपके पास क्या है कि आप यू आर फेसिंग दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि अगर पुलिस आपको आएगी तो 41A 41B का नोटिस ज़रूर भेजेगी एफआईआर होने के बाद। बिफोर एफआईआर तो वो कुछ करेंगे नहीं। हाँ. एंड अगर इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम नियरेस्ट साइबर क्राइम के अंदर पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पर आप नॉर्मली कंप्लेंट करिए दीज आर द आई एम फेसिंग दीज आर द कंप्लेंट, एंड वो क्या करेंगे, जो ईमेल है वो ब्लॉक कर देंगे सीधा। अच्छा. ओके ठीक है. Thank you very much. Okay. ओके। Next Sir, one. one question is that, sir, how the cyber hacker, sir, in the recent case in the Lebanon, she saw that the explosion of the pager and walkie-talkie. How the cyber hacker is work in that manner? देखिए, जो साइबर हैकर जो होगा बेसिकली उसे सिर्फ एक सिस्टम चाहिए एंड वो आईपी एड्रेस चाहिए, राइट? तो इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ चीज़ें होती है। जैसे सपोज आप बोले लेबनान के अंदर जो बैठे है बंदा, उसने हैक किया कुछ, हैक करने के बाद उसके बाद उसने जो आईपी एड्रेस कहीं और का शिफ्ट कर लिया, क्योंकि जो बंदा जो हैकर है अगर कोई क्राइम करेगा थ्रू ऑनलाइन
उसका एक पर्पस होना चाहिए कि वाई व्हाट दे आर डूइंग. उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, दे आर कीप ऑन डूइंग दीस टाइप ऑफ थिंग्स. And secondly, how will you trace it? It is very difficult to trace it. Supposingly, एक हैकर ने लेबला ने बैठा है, उसने हैक करके आईपी एड्रेस इंडिया में शिफ्ट कर दिया. जब इंडिया में शिफ्ट करने के बाद सपोज आपके घर पे कोई आया, तो आप तो बोलेंगे आई एम द इनोसेंट पर्सन. अब आप मेरे को पकड़ के लेके जा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस, एंड दे आर बोलेंगे कि आईपी एड्रेस आपका है. बिकॉज ऑफ द आईपी एड्रेस बाउंसिंग, वो आपके घर पे शो हो रहा है. एंड इसमें ना आप अपना डिफेंस क्या लेंगे? डिफेंस इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए आईपी एड्रेस के बाद आता है डिवाइस एड्रेस. क्योंकि जब आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं ना, डिवाइस एड्रेस जब आपका मैच नहीं करेगा, देन यू आर वेरी तो आप इसमें से निकल जाएंगे. और तो सर उसमें जो ये है, मान लीजिए तो वो आईपी एड्रेस कैन डिफाइन द वेयर द मोबाइल इज हियर. Yes. क्या आईपी यस, आईपी एड्रेस और से आपका जो लोकेशन मिलती है कि इंटरनेट कहाँ पर है, कौन से कहाँ पे रजिस्टर्ड है इंटरनेट. यानी ये वीडियो हर- कहाँ से अपलोड हुआ इंटरनेट पे, ये भी बता हाँ जी, देगा. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भी बता देते हैं. फर्स्ट सोर्स कहाँ से अपलोड हो, ये भी बता देंगे. ओह फर्स्ट. सर क्योंकि we एक need तो to बहुत find out the कुछ. first source as well. What? लास्ट टाइम कहाँ यूज हुआ था ये नहीं बता पाएगा वो. They're telling each and everything, कहाँ से अपलोड हुआ है, कैसे अपलोड हुआ है, every single thing. They will tell you. क्योंकि सर नॉर्मल पर्सन जो है वो फाइंड आउट कर सकता है कि ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ है. देखिए नॉर्मल पर्सन के पास ये अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये जब अथॉरिटी जब आप कंप्लेंट करते हैं, इसके बाद में आगे प्रोसीजर जानेंगे इसमें क्या है. आफ्टर स्लाइड्स के अंदर there few more slides are left, then we take a Q&A round again. ओके सर. Okay. Yeah. Sir, आप हाँ जी बताइए. sir, you said that defamation of email is also a crime. Yes. But the thing is, sir, मैंने as far as सुना है कि defamation में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होना चाहिए तभी वो defamation होता है. फॉर एग्जाम्पल Yes. मैंने आपको कोई मेल भेजा डिफेमेटरी दैट इज, तो वो तो डिफेमेशन के परव्यू में ही नहीं आ रहा है. बट जब आपने मेरे को डिफेमेशन का भेजा, उसमें मेरी सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही रही है ना. यस सर. आपने जब भेजा होगा, सपोज आपने मेरे को पर्सनली, आपने मेरे को मेरी सपोज ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ऑर्गेनाइजेशन भेजा. ऑर्गेनाइजेशन भेजने के बाद एन नंबर ऑफ उसमें कनेक्टेड है मेंबर्स. मेरे पास जो ईमेल आईडी है, सपोज कि आपने टाटा ग्रुप में सेल्स पर्सन टाटा ग्रुप, उसमें जब ईमेल है वो तो 5-6 लोगों के साथ कनेक्टेड है बोर्ड मीटिंग. आपने भेजेगा तो सबकी सेंटिमेंट तो हर्ट हो ही रही है ना उस ईमेल से. दैट्स अ पॉइंट की डिफर्मेशन थ्रू ईमेल. ओके सर. Okay. Can you please change the slide? Next topic is ki computer evidence. What is the computer evidence? Where we find, जब कंप्यूटर एविडेंस वो है कि जब हम ऑनलाइन कंप्यूटर के बेस पे हम एविडेंस फाइंड आउट करते हैं, दिस इज कम अंडर कंप्यूटर एविडेंस. And what are the types of evidence? There are physical evidence, electronic evidence, और technology evidence. Physical evidence ये होता है कि suppose कि there is chat, तो chat में online हमने chat, WhatsApp की chat है, chat के बाद हमने फोटो प्रोड्यूस करना है, तो हम उसका स्क्रीनशॉट लेके 65B का सर्टिफिकेट से हम अपलोड करते हैं. These are the ऑनलाइन एविडेंस, बट हम इसे ऑफलाइन पोस्ट कर रहे हैं. सेकेंडली टेक्नोलॉजी एविडेंस. टेक्नोलॉजी एविडेंस वो होते हैं जिससे सपोज कोई एक्सपर्ट ओपिनियन को जो बुलाया जाता है फॉर दिस कि एवेल्युएट की जो हमने जिस पे हम रिलाय कर रहे हैं वो सही है कि गलत है. उसमें ओरल और डॉक्यूमेंट्री लाइक हैंड रिटन स्क्रिप्ट वगैरह, जो हैंड रिटन वाले जो आपके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गए, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, दे आर कम,
उनसे क्रॉस एग्जामिन करना, ओरली पूछना कि इस टाइप के क्यों यूज हुआ है, दीज आर कम टेक्नोलॉजी एविडेंस. नेक्स्टली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह को जो हम प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एज वेल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Nextly, burden of proof, burden and standard of proof. The burden of proof is like कि suppose कि Mr. A ने Mr. B पे allegation लगाया कोई कि हाँ you commit this type of offense, this type of crime. But अगर हमारे पास कोई relevant fact ही नहीं है कि उस चीज़ को proof करने के लिए कि Mr. A के पास जो fact ही नहीं है कि हाँ उसने offense करा है कि नहीं करा, that's the burden of proof Mr. A complainant पे आता है. Suppose if I'm talking about there is a two-person, A ने B का मर्डर कर दिया. जब A ने बोला कि B ने मेरा मर्डर करा है, sorry, let me take another example क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाओगे. A ने बेसिकली A ने B पे एलिगेशन लगाया कि उसने मेरे साथ रेप कमिट करा है. You all know what is that. कि जब A ने जब एलिगेशन लगाया तो बर्डन ऑफ प्रूफ A पे लगेगा, प्रूफ कि मेरे साथ हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि A इज अ कंप्लेनेंट. क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ तो B के ऊपर ना, B को प्रूफ करना ही है कि किया है कि नहीं है. बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन होगा, MLC होगी, देन बिकॉज सीमेन आएगा, तभी दैट ओनली वी कैन आइडेंटिफाई कि क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ है कि नहीं. And secondly, standard of proof. Standard of proof is like कि reasonable, beyond the reasonable doubt. ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. They are all the part of standard of proof. What are the challenges in cybercrime prosecution? Nature of evidence. Nature of evidence like कि time stamping, IP logging, and device information. Metadata. And secondly, the second point is the email and messaging that link the accused to the crime. क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे, उस लॉगिन जब लिंक पे जब क्लिक करा, क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई, कैसे हुआ. And thirdly and lastly, there are digital footprint. When you're using such activity, when you're using computer and all that, तो आपकी हिस्ट्री में से होता है कि आप कौन सा ऐड देख रहे हैं, क्या है, फिर उस हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं टू व्हाट यू लाइकिंग द मोस्ट एंड ऑल दैट थिंग्स. एंड सेकेंडली, एनोनिमिटी एंड इंटरनेशनल jurisdiction. Like what we are using on dark web, VPN. Suppose कि कोई चीज़ एक्सेसिबल नहीं है कंप्यूटर. सपोज कि आपने 3 पत्ते के एप्लीकेशन जो बोलते हैं कि डाउनलोड कर लो, जंगल रमी एंड ऑल दैट, प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन नहीं मिले क्योंकि इलीगल है. आपने बेसिकली VPN के थ्रू डाउनलोड कर लिया एंड इट विल स्टील ऑल योर डेटा. देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई? दीज आर कम अंडर दिस. देन एक्सपर्ट टेस्टिमनी कि देयर इज अ एक्सपर्ट ओपिनियन वी आर टेकिंग. सपोज अगर कोर्ट में केस जाएगा तो एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा कि what we are relying upon. Next slide please. Next slide is like all about software piracy. What is software piracy? I'm talking about in earlier key what are the piracy. Suppose there is a software, it is way too high, expensive. Then I know we all are Indian, we need to purchase in a really very cheaper way. Then we will buy it in a, हम बेसिकली चीपर वे के खरीदने के चक्कर में हम बोलते हैं कि कोई नहीं, हम पायरेसी वर्जन यूज कर लेंगे. पायरेसी जब यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या पता उसमें बग है कि नहीं है, ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है. उससे क्या होता है, आपकी जो
प्रीवियस ईयर वॉलेट होती है, सब चीज़ होती है, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई? सपोज कॉपीराइट एंड डिजिटल म्यूजिक है। डिजिटल म्यूजिक के अंदर क्या इलीगली आपने कॉपी करके किसी आपने पीपीटी बनाई, कुछ भी मिसयूज कर दिया। जब कॉपीराइट के अंदर आपका यूज होता है प्लेजरिज्म, टू आइडेंटिफाई कि कितना परसेंट आपने ऑथेंटिक है, कितना परसेंट आपने बाहर से कॉपी किया। क्योंकि इफ यू आर कॉपिंग समथिंग यू नीड टू मेंशन द सोर्स एज वेल। सपोजिंग नेक्स्टली डिजिटल म्यूजिक में इज लाइक कि आपने यूट्यूब पे आप इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब के अंदर ऑथेंटिक टी सीरीज वगैरह के काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है, बट वो चीज़ जो दूसरे लोगों को रीच जा रही है, दूसरे लोग, सपोज मिस्टर ए का अकाउंट है, उसने क्या किया, डाउनलोड करा, थोड़ा सा आगे पार्ट क्लिप करी और अपलोड कर दिया। तो डिजिटल म्यूजिक में आ रहा है, क्योंकि लास्ट में अगर आप जाते तो कुछ नहीं आता, टू इंक्रीज द लेंथ। So what are the legal protection in software piracy? Firstly, the Copyright Act, जो लगता है. Secondly, international treaties, and thirdly, IT Act. What is Copyright Act? Copyright Act is the intellectual property right में act है, जो basically copyright पे लगता है in general. Author, music, these are the what जो authors वगैरह है, जो basically artistic work करते हैं, they are come under Copyright Act. And secondly, what are the international treaties? अब इसमें international treaties इसलिए आ रही है क्योंकि once you uploading, suppose आपने एक ट्यून बनाई, आपने जब ट्यून बना के जब आपने अपलोड करा, तो वो ट्यून वर्ल्ड वाइड नहीं है, तभी आपने अपलोड करा, और वो सेम चीज़ कोई कॉपी कर ले, तो क्योंकि यू आर द क्रिएटर एंड वो कोई चीज़ कॉपी करे, तो इसमें आपकी जो सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क यू क्रिएटिंग इट. एंड thirdly and lastly, it is IT Act इसलिए लगा क्योंकि we are uploading online version. That's why. Next slide. Can you please change the slide? Cybercrime with the mobile and wireless technology. The most interesting topic. Like the crime related to mobile and electronic on wireless network, as you all know. So mobile, if I'm talking about, there is an example I'm taking in the starting of the topic. So Mr. There is a couple like husband wife. Basically, मेरे पास केस आया था. I don't name the name. मेरे को नाम नहीं लेना है, but still I'm just telling you the fact what the story is. एक husband wife है. Husband wife ने basically शादी के in marriage के initial years ने husband wife ने बहुत सारे videos बनाई थी to capture the private moments. तो husband के phone में wife के private moment capture, husband wife दोनों के. Then what happened after couple of years ago, then the husband is using 15 Pro Max and all that device. तो उसने VPN dark web के through एक application download करी. When after the downloading that application, उसने allow करा कि allow all the access and everything, then उसका जो phone है पूरा clone हो गया. And now they are misusing the private moment into, and the hacker put their private moments, photos and video in the internet, and they are misusing him, and they are threatening them. That are the example of a mobile and wireless technology. What are the areas of cybercrime? Mobile device attackers.
mobile device attackers. While so, what are the mobile device attackers? Can you give me example? Could anyone answer this? So bombing, SMS bombing. Right. Any after the and कोई और बता सकते हैं इसके apart from this? सर स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसी में ही आ जाएगा। हाँ जी। बस तो मोबाइल डिवाइस अटैकर व्हाट आर दे टू कि दे आर लाइक कि आपके बेसिकली देखो कंप्यूटर हर बंदा कैरी नहीं करता आजकल मोस्ट ऑफ द लोगों के पास है मोबाइल तो मोबाइल इज अ वेरी लार्ज एरिया जो आप टारगेट कर सकते हो हर घर में फोन है हर घर में प्राइवेट हर किसी के प्राइवेट मोमेंट कैप्चर करते हैं क्योंकि आप लैपटॉप के अंदर हर चीज़ नहीं रख सकते मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है उसमें आप पब्लिक के साथ प्राइवेट मोमेंट से आप कैप्चर करते हो एंड दे आर लाइक सपोज कि इफ यू आर यूजिंग आपने आई विल गिव यू द एग्जांपल आपने सपोज पब्लिक प्लेस पे गए आपने चार्जिंग के लिए सॉकेट लगाया चार्जिंग के लिए विदाउट अडॉप्टर आपने सिर्फ पेन ड्राइव इंसर्ट कर दी व्हेन यू इंसर्ट योर पेन ड्राइव टू चार्ज योर फोन पेन ड्राइव से सारा आपका जो डेटा है वो चला जाएगा क्लोन हो जाएगा विदाउट नोइंग यू आपका जो सारा डेटा वो ट्रांसफर हो जाएगा देन दे आर मिसयूजिंग यू आपको सॉरी दे आर मिसयूजिंग ऐसे करते हैं कि देखो आपको तो देखो भेजेंगे नहीं वो जो आपका प्राइवेट मोमेंट आपके जो कॉन्टैक्ट्स है सब चीज़ों को भेजेंगे आपके इंफॉर्मेशन पता चलेगी तब तक वो चीज़ हो चुकी होगी क्योंकि सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आई स्टे इन दिल्ली देन आई नो देयर इज अ प्लेस कनॉट प्लेस वहाँ पर बेसिकली इनर सर्कल के अंदर क्या होता है कि स्क्रीन लगी होती है वेयर यू कैन चार्ज योर डिवाइस ऑन अ पेन ड्राइव वर्जन तो पेन ड्राइव में डालने के बाद आपको क्या पता पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपका जो डेटा है सब क्लोन होकर आपको मिसयूज करते हैं मेरे पास इस टाइप के क्लाइंट्स वगैरह भी आए हुए हैं कि दे आर टेलिंग कि ऐसे ऐसे हुआ व्हाट वी कैन डू इन दिस इन एवरी सिंगल थिंग एंड सेकेंडली वायरलेस नेटवर्क एक्सप्लॉइट लाइक कि आप पब्लिक के अंदर कोई वाईफाई यूज कर रहे हैं आपने सपोज वाईफाई हैक कर लिया है जब अपने वाईफाई जब यूज करे तो आपको नहीं पता कि वाईफाई के अंदर आपका क्या हो रहा है कौन से वीपीएन से आ रहा है क्या आ रहा है क्या नहीं रेलेवेंट है कि नहीं है जब आपने एक्सेस किया उसके बाद आपको जब आपने लॉग इन करा फ्री में ऑन अ पब्लिक वे तो उससे आपका जो डेटा जो स्टील हो जाता है secondly lastly mobile payment and financial frauds like कि QR कोड स्कैनर जो स्कैम जो हो रहा है QR कोड किसी का है जा कहीं रहा है एंड फेक एप्लीकेशन बनाई गई है फेक पेमेंट की एप्लीकेशन बनाई गई है कि इस टाइप से आप कर सकते हैं एंड can you change the slide? Yes, there is a Q&A round. If someone want to ask, they can. Hello. Hello. Yeah. I have one question. Recently, one of my relatives have got call from some unknown number. Yeah, it's a new number. So we were like expecting that it was from hackers or someone. So he was told that an FIR has been registered against him. Okay. He cut the call and again he got the call. So later on he called me and asked me what was that and how to deal such situation when we get call. How should we deal such calls? देखिए सपोज आपके पास कोई कॉल आया कि हाँ
आपके बच्चे को हमने उठा लिया है कि आप मेरे को दिस टीचर, राइट? तो उसमें क्या होता है, देखिए आप उस टाइम पे आप पैनिक कर जाओगे कि हाँ ये मेरा बच्चा है कि नहीं है, ये मेरे साथ ऐसा, मेरे क्लोज वन के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। अदरवाइज जो आपके नियर में कोई दूसरा फोन है, आप उसका पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर इस टाइप की चीज़ें आ रही है कि आप साइबर में कंप्लेंट कर दीजिए कि आई एम फेसिंग दिस टाइप से कॉल है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आप सपोज इफ यू आर पुलिस ऑफिसर, आप डीसी वगैरह के आप यूनिफॉर्म में पहन के आप फोटो अपलोड करते हैं व्हाट्सएप पे, एंड वो आपके व्हाट्सएप पे वो पब्लिक अकाउंट व्हाट्सएप पे फोटो लेके नंबर कोई और होता है, आपको मिस यूज करते हैं। एंड मुंबई के अंदर ये सारे स्कैम बहुत ज्यादा चल रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे आया कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गया है, तो ये जैसे कॉल आ रहा है तो हाउ शुड आई आंसर उसको एट द मोमेंट? हम क्या आंसर करें? हो सकता है वो भी हो कभी, मतलब मोस्टली तो मैं उसको, अब मुझे डाउट ही होता है पहले। देखिए अगर आपके साथ, अगर सपोज कि किसी ने बोला कि आपके साथ आपके लिए आपके पर एफआईआर हो गई है, जब एफआईआर होगी तो बेसिकली आपके पास समन आएगा और 41A या 41B का नोटिस आएगा, पुलिस वाले लेके आएंगे। क्योंकि इफ अक्यूज्ड है, अक्यूज के साथ वो अक्यूज वगैरह जो भी होते हैं सबके पास 41A का नोटिस आता है। जब एफआईआर होने के बाद क्या होता है, आईओ पॉइंट होता है। आईओ बेसिकली उस चीज को इन्वेस्टिगेट करता है कि द फैक्ट इज रिलेवेंट और नॉट, उसके बाद ही चीज़ें आगे प्रोसीड होती है। सपोज इफ यू आर द इनोसेंट पर्सन, तो आप बोल रहे कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यू हैव द प्रूफ एज वेल ना। क्या देखिए किसी ने आप पे एलिगेशन लगाया तो आप भी तो अपना पॉइंट रखोगे ना कोर्ट के अंदर कि हाँ मैं तो इनोसेंट हूँ, अपने एविडेंस आप पुट करोगे अच्छा, टू डिफेंड यू। ओके, थैंक यू। सर यूज ऑफ एक्सटॉर्शन इन साइबर क्राइम समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सॉरी, यूज ऑफ एक्सटॉर्शन इन साइबर क्राइम आपने अभी थोड़ा देर पहले बोला था, थोड़ा सा उसका मोर डिसिफर हो जाता है तो यूज ऑफ एक्सटॉर्शन इन साइबर क्राइम। यस सर। ओके, तो बेसिकली साइबर एक्सटॉर्शन इज लाइक कि आप जब आप साइबर जैसे रैंसम वगैरह मांगते हैं ऑनलाइन, जैसे आपने सपोज कि आपने किसी को किडनैप करा, किडनैप करने के बाद आप बोले कि हाँ मेरे को इतना अमाउंट दे दो, अदरवाइज आई विल नॉट रिलीज योर चाइल्ड। दीज आर द कॉल अंडर एक्सटॉर्शन एंड ऑल दैट, क्योंकि आप एक्सटॉर्ट तो कर ही रहे हैं ना। सपोज कि बेसिकली मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था, सपोज कि पाकिस्तान से कोई कॉल आया है कि आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, जब तक आप मेरे को एक्स अमाउंट नहीं दोगे तब तक मैं आपके बच्चे को रिलीज नहीं करूंगा, एंड जेन्युइनली आपका बच्चा फ्री घूम रहा होगा। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन दे आर डूइंग। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Sir, I also got the call in alternate day recent. What I do for this to stop the such type of the call? What type of call you are receiving? Such like they are telling, oh, they are telling about the some university's name, or they are telling about the some other events. And when they pick up, I pick up the girl, they are stopping to talk. हाँ वो बोलना रोक देते तो how can I do it? In the true caller they also get the spam call. They also show the spam call. These call are the spam. So how to solve the such type of the problem? देखिए, if you're facing the problem, firstly you just go to the nearest cyber crime police station. You just give a complaint, and these are the, and अगर आपको नॉर्मली कॉल वगैरह आ रहे हैं, सपोज आपकी वॉलेशन को प्रीवियसली को वॉलेशन को हर्ट करे, तो आप देखिए दो चीज़ कर सकते हो, साइबर में कंप्लेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट कर सकते हैं आई एम फेसिंग दीस थिंग्स एज वेल। देन इसके अंदर क्या होगा कि कंप्लेंट देने के बाद अगर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कंप्लेंट लेने के बाद क्या होता है, आईओ पॉइंट होता है हर कंप्लेंट। जब आईओ पॉइंट होगा, आईओ बेसिकली उस नंबर पे कॉल करेगा, उसको बेसिकली बोल देगा कि अगर यू आर डूइंग
these type of thing again and again, they will give you मतलब उसके बाद FIR convert हो जाएगा. These type of things happen. Hello. Okay, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, my 2,000 rupees is freeze by bank. When I visited bank, sir, they told me that you can consult to nearby cybercrime police. Sir. Sir, what is the process of defreeze of my account, sir? ये डिपेंड करता है कि देखिए अगर आपको डिफ्रीज करवाना है, सपोज कि आपके जो अकाउंट में पैसे आपने किसी को पैसे दिए, किसी को आपने या किसी ने आपको पैसे दिए, जो मनी के जो ट्रांजैक्शन है जिस अकाउंट में जाएगी सारे अकाउंट फ्रीज कर देंगे नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, आपका जो अकाउंट है फ्रीज कहाँ से हुआ है बताएंगे सर आप? सर ब्रांच से नहीं, जो अकाउंट फ्रीज हुआ है जो साइबर ने क्या करता है, जैसे सपोज आपने कंप्लेंट करा साइबर क्राइम के अंदर जब कंप्लेंट करा, जो लिंक के अंदर जितने भी जो होगा वो जो मेल करेंगे ब्रांच हेड जब आप मेल करेंगे ब्रांच हेड को, जो ब्रांच हेड है वो अकाउंट फ्रीज कर देगा. राइट, आप ये देखिए जो ब्रांच हेड से पूछे कि बेसिकली मेरे पास जो फ्रॉड जो बेसिकली जो फ्रीज करा है आपने किसके एप्लीकेशन के थ्रू फ्रीज करा है एंड क्यों फ्रीज करा है, आप नॉर्मली तो पूछ सकते हैं. वो बोलेंगे साइबर के रिलेटेड मैंने फ्रीज करा है. तो आप ये देखिए कि कौन से रीजन ने आपका अकाउंट फ्रीज करा है. सपोज अगर जो कंप्लेंट दिल्ली के अंदर बैठे, दिल्ली वाले ने आपका तमिलनाडु के अंदर देख के आपका फ्रीज करवाया, तो आप दिल्ली वाले से पूछिए ना क्यों करा है, क्या है एंड ऑल दैट. क्योंकि इसके लिए यू नीड टू हायर एन एडवोकेट फॉर दैट, जो आप पर्सनली जो विजिट कर सकता है रीफ्रीज के लिए. क्योंकि for a small amount, how we can hire an advocate for that? That's why it's my Yes, sir. That's it. It's my suggestion. If you're using, suppose कि आपका एक अकाउंट फ्रीज हो गया, तो एटलीस्ट यू आर यूजिंग 2 accounts साइमल्टेनियसली. क्योंकि आप सपोज आप if you're stuck in one particular area, then how will you release yourself? Yes, sir. Next point is function of trademark. What is trademark? The trademark play a very major role in a cybercrime because if you are putting something on internet, they come under trademark. Firstly, there are two types of trademark: registered or unregistered. Then suppose